Hariam children, welcome back in our 8th standard computer classes. Here NV Chinmaya Vidyalaya is again present with its online classes through WhatsApp. Today we are going to make and create one video tutorial for lesson number 7, the computer malwares. I am here Ankush Dada with you for explaining you the further points of these lessons. So without wasting any time, let's start our today's topic. Today we are going to talk on how the viruses spread. In our last Zoom class, we stopped on this topic. Okay, we discussed this topic and we concluded on that point only. So today we are going to start with this point again, how the viruses spread. Viruses are the programs created in such a way that they can easily replicate themselves once entered in the computer system. As soon as an infected program is executed, the virus code is executed first and starts creating its copies to the other programs or boot records. Sometimes they stay inside the computer's memory till it is switched off, and sometimes it stays active till the infected application is running. They spread automatically from one system to another through storage media, networks, or internet. When a virus infected CD, pen drive, or other storage medium is used in an uninfected system, okay, when a virus infected CD, pen drive, or other storage medium is used in an uninfected system, it copies itself to the memory of that system and starts infecting the program files. When the system is switched off, the virus vanishes from the memory but resides in the infected files. Means अगर हमारा कंप्यूटर स्विच ऑफ भी अगर हम कर दे रहे हैं तो उसका वर्क रुक जा रहा है वायरस का, बट वो वहाँ से चला नहीं जा रहा है. इट्स स्टिल देयर, ओके, in those infected files it's still there, and as soon as we start our system again it will get active, and it will stay active in background. Okay, we will not be able to see or understand that it's activated, it's working, but that file will be there, those infected files will be there and active in background and doing their malicious works, okay, without even us realizing it. And how they come into our system? With different kinds of networks or those storage devices which we use to copy or to share our media files or our documents or any other data from one system to other system. If we attach a pen drive or CD which is infected with virus into our uninfected system, it automatically copies itself and comes in our system too. That's how it gets spread. It also gets spread through emails and our internet data also. Whenever we download something or whenever we open something on our internet, it gets installed in our system too. Okay, so that's why be sure to use active antivirus and keep your Windows firewall on every time. Whenever you use internet, keep these two things active all the time. Now, effects of virus infection on your system. A system infected with some kind of virus can show the following symptoms. The available memory of the system decreased drastically. जो हमारी अवेलेबल मेमोरी होती है सिस्टम में, मीन्स जो हमने यूज़ नहीं की है, जो एम्प्टी है, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है. मीन्स हमारी मेमोरी फुल होना शुरू हो जाती है, हमें पता भी नहीं चलता. व्हेन वी सर्च फॉर इट कि हमने इतना डेटा सही में यूज़ किया है क्या, या ऑक्यूपाई किया हुआ है क्या हमारे मेमोरी में से, वो हमें पता नहीं चलेगा. ओके, बिकॉज वो
खुद की जो सिस्टम्स फाइल्स होती है उस वायरस की, वो खुद को अपडेट करते जाएगा, वो हमारी स्पेस ऑक्यूपाई करते जाएगा, बट वी विल नॉट बी इवन एबल टू अंडरस्टैंड कि हमारी वो स्पेस ऑक्यूपाई हो कहाँ रही है. The size of the infected files increases, causing the reduced disk space. The working speed of the system gets lower. जो हमारे सिस्टम की वर्किंग स्पीड होती है वो भी काफ़ी हद तक स्लो हो जाएगी. पता है क्यों? because those viruses, those infected files, they are running in background. ओके और हमारे सिस्टम की जो रैम है वो यूज़ कर रहे हैं ताकि वो एक्टिव रहे, ताकि वो उनका काम करते रहे बैकग्राउंड में. बिकॉज दैट फाइल, दैट प्रोग्राम इज ऑल्सो रनिंग इन बैकग्राउंड, सो आवर रैम इज गेटिंग यूज्ड, आवर मेमोरी इज गेटिंग यूज, which is the most key point for our speed of our computer. Okay, when our RAM gets occupied, then our other programs are not getting that memory to perform their work properly, and that's how our system gets slower and slower, okay, day by day. And we were unable to understand what's happening. Few days ago it was working properly, now it's getting very slow, it's getting hang, it's not it got very slow performance. We don't know how it's happening. Next, unusual messages or characters appearing on the screen. ओके कभी कभी आपने देखा होगा कुछ अनयूजुअल कैरेक्टर्स या फिर कुछ मैसेजेस जो होते हैं वो हमारे स्क्रीन पे ऐसे ही पॉपअप होना शुरू हो जाता है. इसका मीनिंग क्या है? ये सारी चीज़ें कैसे होती है? इट हैपन्स बिकॉज ऑफ दोज मैलिशियस फाइल्स. ओके, डेटा फाइल्स damaged or corrupted showing unusual characters or symbols in place of actual data. डेटा फाइल्स जो होती है, डेटा फाइल्स डैमेज्ड और करप्टेड शोइंग अनयूजुअल कैरेक्टर्स और सिम्बॉल्स इन प्लेस ऑफ एक्चुअल डेटा. जो भी हमारा पिक्चर है या फिर जो भी हमारा डेटा है, कोई फाइल है, वो उस फाइल के जगह पे कुछ ऐसे अननोन कैरेक्टर्स या सिम्बॉल्स जैसे नेम्स वहाँ पे बताएगा. And when we try to open it or check it what it is, it will not even get open. Okay, so ये होता है viruses के ही वजह से. Sometimes even the whole hard disk gets reformatted. कभी कभी जो हमारी हार्ड ड्राइव होती है जिसके अंदर हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम और हमारे जो भी डेटा या इंफॉर्मेशन हमने स्टोर करके रखी हुई होती है, कभी कभी वो पूरी की पूरी हार्ड डिस्क को भी फॉर्मेट कर देता है, रीफॉर्मेट कर देता है, रिन्यू करे जैसा कर देता है, सारा हमारा कंटेंट वहाँ से इरेज कर देता है. ओके, सो दिस आर द इफेक्ट्स ऑफ वायरस इन्फेक्शन ऑन योर सिस्टम. नाउ अब ये तो हमने वायरस कैसे आते हैं वो हमने देख लिया, हाउ इट कम्स टू आवर सिस्टम, दैट वी आर अवेयर ऑफ, and how to notice that our system gets infected with viruses. उसके साइंस भी हमने सीख लिए. Now preventive measures from virus, हम क्या प्रिवेंशन कर सकते हैं हमारे सिस्टम के लिए, so it's not get infected of from viruses, और अगर viruses आ भी जाए तो उन्हें निकाले कैसे. How to do those preventions? It is rightly said that prevention is better than cure. Correct ना? So it is always better to take the preventive measures to safeguard your system from any type of virus attack. The following steps can be proved helpful to prevent system from virus attacks. First, avoid the use of external or unknown storage devices, and if required, scan them properly with some good antivirus software. Understood? While working with your email account, do not open the unknown emails. जो भी आपके unknown emails है उनको open ना करें. Before downloading any file or program from the internet, make it sure that the source you are using is reliable one. Okay, means
हमेशा चेक करें, जब भी आप कुछ डाउनलोड करने वाले हो हमेशा चेक करें कि जो वेबसाइट आप यूज़ कर रहे हो वो वेबसाइट सिक्योर्ड है या नहीं। मैंने आपको बताया था हाउ टू चेक इट, एवरी टाइम चेक इट। द वेबसाइट URL in the beginning it's supposed to have S in HTTP. Okay, after HTTP it's supposed to have S, HTTPS वहाँ पे होना चाहिए। अगर वो S वहाँ पे नहीं है that means it's not secured, it's not verified। ओके, सो वहाँ पे सबसे ज़्यादा चांसेस है कि वहाँ से अगर आप ऐसे किसी सोर्स से डाउनलोड कर रहे हो तो उस डाउनलोडिंग डेटा के साथ में आपके सिस्टम में वायरसेस भी आ सकते हैं। सो बेटर नॉट यूज सच काइंड ऑफ सोर्सेस। नेवर इंस्टॉल द पायरेटेड सॉफ्टवेयर इन योर सिस्टम। नेवर इंस्टॉल द पायरेटेड सॉफ्टवेयर इन योर सिस्टम। काफ़ी बार हम क्या करते हैं, हम पायरेटेड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं क्योंकि वो हमें फ्री में मिल जाते हैं, बट देर आर मोर चांसेस दैट योर सिस्टम गेट्स इन्फेक्टेड बाय यूजिंग दिस काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर्स ओनली। ओके, install an effective antivirus software in your system and update it periodically। उसे टाइम टू टाइम अपडेट करते रहना है। इफ़ योर सिस्टम इज कनेक्टेड ऑन अ लोकल एरिया नेटवर्क देन रिस्ट्रिक्ट द एक्सेस टू योर सिस्टम एंड अलाउ ओनली द जेन्युइन यूजर्स टू यूज द सिस्टम रिसोर्सेस। ऑलवेज कीप अ बैकअप कॉपी ऑफ योर डेटा फाइल्स। हमेशा अपने फाइल की एक बैकअप फाइल रखिए, ठीक है। क्यों? अगर आपके फाइल्स इन्फेक्टेड हो जाते हैं, अगर करप्ट हो जाते हैं, सो यू विल नॉट बी एबल टू यूज़ देम अगेन। सो ऐसे समय आपकी जो बैकअप कॉपी रहेगी वो हमेशा आप यूज़ कर सकोगे अगर आपका डेटा लॉस्ट हो जाता है जस्ट इन केस तो। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ओके, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स के बारे में बात करते हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स आर द यूटिलिटीज विच प्रिवेंट the viruses to enter in your system. They can also detect and remove the virus entered in your system. These are the memory resident programs and get activated as soon as the system is started. जैसे ही आपकी सिस्टम स्टार्ट हो जाती है इनका भी वर्क जो है वो स्टार्ट हो जाता है। इनको कौन से सॉफ्टवेयर्स बोला जाता है, सुन लो। Antivirus softwares are the utilities which prevent the viruses to enter in your system. They can also detect and remove the virus entered in your system. These are the memory resident programs. जैसे ही उनको मेमोरी मिलती है, ओके, मीन्स जैसे ही हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है एंटीवायरसेस भी स्टार्ट हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। It checks all the files in the system and in case any virus is detected, it removes the virus. Also, while working on the computer, if some infected storage device is used, जैसे ही हम हमारे कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हैं और जैसे ही कोई इन्फेक्टेड डिवाइस अगर हम लगाते हैं लाइक पेन ड्राइव और CD एनीथिंग, सो इट जनरेट्स द वार्निंग मैसेजेस एंड स्टॉप्स द डेटा ट्रांसफ़र। वो डेटा ट्रांसफ़र जो हम कर रहे होते हैं, कॉपी कर रहे होते हैं या फिर सेंड कर रहे होते हैं, वो उससे स्टॉप कर देता है उसी समय और हमें वार्निंग मैसेज भी शो करता है। ओके, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपडेटेड विद द डेफिनेशंस ऑफ न्यू वायरसेस। हमेशा न्यू वायरसेस बनते रहते हैं। प्रोग्रामर्स जो होते हैं, मालिशियस सॉफ्टवेयर्स या प्रोग्राम बनाने वाले, वो नए नए सॉफ्टवेयर्स बनाते रहते हैं मैलिशियस मालवेयर से भरे हुए। सो इन सभी मालवेयर्स को जैसे ही आइडेंटिफाई किया जाता है, उनके अपडेट्स, उनसे सिक्योर रहने वाले एंटी प्रोग्राम्स जो होते हैं वो भी आपको दिए जाते हैं। सो इसीलिए आपको टाइम टू टाइम अपने एंटीवायरसेस जो है वो अपडेट करते रहना चाहिए ताकि न्यू वायरसेस जो है उनसे भी हमारा प्रिवेंशन हो। जो ऑलरेडी हो चुके हैं, फाइंड हो चुके हैं, उनकी फाइल्स हमारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में होती है, बट जो न्यू वायरसेस फाइंड होते हैं, जैसे ही एंटीवायरस कोई वायरस फाउंड करता है, ठीक है, उसे मिलता है, तो उससे रिलेटेड एंटी प्रोग्राम वो बना के हमें अपडेट्स देता है, वो हमें इंस्टॉल कर लेने होते हैं जस्ट बाय अपडेटिंग आवर एंटीवायरसेस। ओके, दिस अपडेशन कैन इजीली बी डन यूजिंग इंटरनेट थ्रू द वेबसाइट ऑफ द कंपनी
who has created the software. Some popular antivirus softwares are Norton Antivirus, AVG, Quickheal, Avast, McAfee, Clean, and so many are there. Actually, I am also using this Quickheal antivirus total security software, which comes up with a good source of we can say anti-malware or antiviruses. Spyware. Okay, now what is this spyware? uh, After these antiviruses, let's come back to our regular topic of this lesson, spyware. These are the kind of softwares downloaded on your computer without your knowledge. ओके हमें पता चले बिना ये हमारे कंप्यूटर में डाउनलोड किए जाने वाले सॉफ्टवेयर्स होते हैं टू ट्रैक योर एक्टिविटीज़ एंड टू रिपोर्ट द सेम टू द पीपल हु आर रेडी टू पे फॉर इट. They can also be used to collect someone's personal information for the purpose of identity, theft, or fraud. Normally, they collect the information like email address, passwords, credit card numbers, web pages visited, etc. etc. ये ज़्यादातर सिर्फ हम पे नज़र रखने के लिए हमारे पता चले बिना इंस्टॉल किए हुए या फिर डाउनलोड किए हुए कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जिनको ज़्यादातर हम पे स्पाई करने के लिए यूज़ किया जाता है. Now afterwards we have spams. Spams are the unwanted messages which are forcefully sent to a large number of people who otherwise do not want to receive these messages. The most common form of spam is unwanted electronic junk mails. मीन्स हमारे ईमेल जो हमें नहीं चाहिए, इन विच अ सिंगल मैसेज इज सेंट टू इंडिविजुअल यूजर्स विथ डायरेक्ट एड्रेसेस. हमारे ईमेल एड्रेसेस पे डायरेक्टली भेजे जाते हैं. इन दिस मेल सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स आर प्रोमोटेड बाय वेरियस कंपनीज. बहुत सारी कंपनीज होती है जो हमारे ईमेल एड्रेसेस, ये जो भी स्पैम्स या फिर जो भी स्पाईवेयर यूज़ करने वाले प्रोग्रामर्स है, ठीक है, हैकर्स है, प्रोग्रामर्स है, वो लोग क्या करते हैं हमारे सिस्टम पे, हमारे एक्टिविटीज़ पे उनको स्पाई करते हैं, उन पे नज़र रखते हैं और हम कौन से वेब पेजेस देखते हैं, हम क्या शॉपिंग करते हैं, ये सारी डिटेल्स उन कंपनीज़ को देती है जो कंपनीज़ इन लोगों को पे करती है. ऐसे यूज़र्स के ईमेल एड्रेसेस या फिर मोबाइल नंबर सेंड करने के लिए या फिर जो भी उनकी प्राइवेसी डिटेल्स है वो सेंड करने के लिए, जिससे कि वो कंपनीज़ हमें उन चीज़ों के एडवर्टाइजमेंट शो कर सके जो चीज़ें हम ऑनलाइन बाय करते हैं. ओके, सो दैट्स हाउ इट वर्क्स. देन वी हैव एडवेयर्स ऑल्सो, बट बिफोर दिस लेट्स कंप्लीट इट. इन दिस मेल सर्विसेज in these mail services and products are promoted by various companies. Most of the time these are annoying but harmless. ये काफ़ी annoying होते हैं, बार बार आते रहते हैं, but ये harmless होते हैं ज़्यादातर. However, sometimes these are used for identify theft or to do cyber fraud. Okay, now adware. These are the programs which deliver unwanted ads. ये क्या करते हैं, अनवांटेड एड्स देते हैं इन द फॉर्म ऑफ पॉपअप्स टू योर कंप्यूटर. वाइल ब्राउजिंग द इंटरनेट, दिस पॉपअप्स स्टार्ट्स डाउनलोडिंग बाय देमसेल्फ टू योर कंप्यूटर एंड दिस वे दे ईट्स अप द बैंडविड्थ ऑफ योर इंटरनेट कनेक्शन. और इस तरह से ये क्या करते हैं कि हमारे इंटरनेट कनेक्शन की बैंडविड्थ जो है उसे कैच कर लेते हैं. Due to the non-availability of sufficient bandwidth, the browsing becomes slower and your required pages take more time to appear in the web browser. Okay? और इस वजह से आपके जो वेब पेजेस जो आपको शो होने चाहिए वो काफ़ी टाइम लेते हैं आपके ब्राउज़र पे शो होने के लिए. Now let's talk about the phishing. It is one of the fraudulent process to acquire some secret information from the user like credit card number, net banking passwords, account data, etc. with the help of an authentic looking email or website.
For example, you may receive an email from your bank asking you to update your information regarding your user ID and password of your net banking account. The mail, which appears to be genuine and sent by the bank, collects the sensitive information and sends it to fraudulent people who may use it later for some cyber crimes. हमेशा याद रखें, बैंक्स कभी भी आपको ईमेल थ्रू या फिर आपको मैसेज थ्रू या कॉल थ्रू आपकी डिटेल्स नहीं मांगेगी, ठीक है। सो कभी भी ऐसी एडवर्टाइजमेंट या कोई मेल वगैरह आपको आता है, मैसेज आता है जिसमें आपकी ये सारी प्राइवेट डिटेल्स मांगी जा रही हो, सो नेवर गिव देम टू देम, नेवर गिव इट टू देम, ओके। एंड इफ़ यू रिसीव एनी फ़ोन कॉल्स लाइक दिस, एंड फ़ोन कॉल्स पे आपसे आपके आधार कार्ड के नंबर्स, और इफ़ दे आस्क योर क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड्स नंबर्स, डायरेक्टली उनको बस इतना बोल देना है दैट आई विल कम इन आवर बैंक एंड आई विल गिव देम पर्सनली, एंड प्लीज़ गिव अस योर नेम सो आई कैन टेल इट टू देम ऑल्सो। या फिर आप उनको कंफर्म बस इतना पूछ के कर सकते हो कि मेरे एक फ्रेंड है उस हमारे इसी बैंक में जहाँ से मैंने हमारा अकाउंट बनाया है, और आप मुझे आपका नाम बताइए, सो मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ उनसे बात करके। आप इतना भी पूछेंगे ना तो वो फ़ोन कट हो जाएगा डायरेक्टली। मैंने ये ट्राई किया है, वैसे कोई दोस्त है नहीं मेरा, बट आई वॉज जस्ट क्यूरियस कि देखते हैं कि कभी बैंक ऐसे कॉल नहीं करती है, सो आज मुझे कैसे आया। सो आई जस्ट ट्राई टू आस्क देम कि अपना नाम बताइए, मैं चेक करता हूँ एंड ऑल दैट थिंग, एंड बाद में फ़ोन एकदम से कट हो गया एंड इट वॉज स्विच्ड ऑफ। So it was a clear case of phishing. So never ever give your bank account details to anyone on phone or email or any WhatsApp. Okay. All right. Let's move to our next point. Hackers and crackers. Hackers and crackers क्या होते हैं? इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं. A hacker is a person who possesses high level of computer skills and having good knowledge of the machine and operating system. He attempts to gain access on a remote computer for which he is not authorized for the purpose of corrupting or stealing data in that system. But the main aim of the hacking is to know the details of the system and how do they work. ठीक है, इसका मेन पर्पस हैकिंग का सिर्फ इतना होता है कि वो डिटेल्स देख सके उस कंप्यूटर से, या फिर वो कंप्यूटर की ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यूज़ कैसे कर सके, ठीक है, उतना ही होता है। बट ऑन द सेम प्लेस अ क्रैकर ऑन द अदर हैंड इज अ पर्सन हु इज एक्सपर्ट इन ब्रेकिंग द सिक्योरिटी ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, हैकर क्या होता है, वो हाई लेवल ऑफ कंप्यूटर स्किल्स वाला एक प्रोग्रामर होता है, बट क्रैकर उसी जगह पे एक ऐसा प्रोग्रामर होता है जो कि एक्सपर्ट होता है कंप्यूटर की सिक्योरिटी सिस्टम जो होती है उसे ब्रेक करने के लिए, और नेटवर्क टू स्टील important information without the consent of the other person. Because of this they are also known as cyber burglars. ठीक है, उन्हें साइबर बर्गलर्स भी बोला जाता है, चोर भी बोला जाता है, as their intention is always to cause damage to other users. They are considered to be more dangerous than the hackers. Okay, हैकर्स से ज़्यादा क्रैकर्स डेंजरस होते हैं। हैकर्स का काम सिस्टम को डैमेज करना नहीं होता है, चोरी छुपे इंफॉर्मेशन डिटेल्स ले लेनी होती है, बट उसी जगह पे क्रैकर्स जो होते हैं वो ज़्यादा डेंजरस होते हैं, बिकॉज देयर इंटेंशंस आर हार्मफुल, दे आर फुल ऑफ हार्मफुल इंटेंशंस, they have always full of harmful intentions towards your data, towards your files, towards you also. Okay, so hackers say crackers are more dangerous. Now last point, firewalls. Firewalls क्या होता है? These can be the hardwares of softwares which protects a system, network or server from the virus or hacker attack. It acts like a traffic cop,
allowing or disallowing access to a computer or network based on the predefined rules. ठीक है, कुछ रूल्स होते हैं इसमें जो वो अप्लाई करता है एवरी सॉफ्टवेयर पे, एवरी प्रोग्राम पे जो भी हम ओपन करते हैं, जो भी हम स्टार्ट करते हैं। अगर उससे इसमें कुछ गड़बड़ लगती है तो वो उसे अलाउ ही नहीं करता है, ठीक है, वो उसे स्टॉप कर देता है। दैट्स वाई ऑलवेज कीप यूर फायरवॉल ऑन, ठीक है, हमेशा अपनी फायरवॉल को एक्टिव रखना है, उसे बंद नहीं करना है जस्ट फॉर इंस्टॉलिंग और जस्ट फॉर यूजिंग सम पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेसन। अगर किसी को इन सभी पॉइंट्स में से किसी भी पॉइंट में कोई डिफ़िकल्टी आती है, सो यू गाइज कैन कमेंट हियर इन दिस कमेंट बॉक्स, और आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी भेज सकते हो। Okay, and directly you can ask me question on WhatsApp too. So that's it for today. Soon I will give you question answers for this lesson too. All right, so please carefully watch this video of the lesson number 7, the computer malwares. All right, Hari Om.